جی السلام علیکم سر، کون صاحب کہاں سے؟ میں سلمان مرزا جاپان ٹوکیو سے بات کر رہا ہوں۔ جی مرزا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہیں اور گے مرزا صاحب آج کل کے حالات کے اوپر آپ؟ حالات یہ ہیں کہ ہم تو جتنے بھی پردیش میں ہیں ہم صرف پاکستانی ہیں، جی اور ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں، اور ہم باہر جو ہوتے ہیں ہم سب پاکستانی ہی ہوتے ہیں صرف، بہت اور زبردست، پاکستان ہے تو پارٹیاں ہیں۔ زبردست۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کو پچھلے 70 سال سے جو حشر کیا ہوا ہے، اور سب پارٹیوں نے 30 سے 40 سال ان کو لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کسی پارٹی سے نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو کوئی میں تحریک انصاف سے ہوں، ہمیں صرف پاکستان نظر آتا ہے، اور پاکستان کے لیے جو چیز بہتر ہوگی چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ہمیں وہ شخصیت یا وہ پارٹی پسند آئے گی، تاکہ ہمارا ملک مضبوط ہو، ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو، ہمارے ملک کے ادارے مضبوط ہوں۔ لیکن ان اداروں کے اندر اگر کوئی بدماشی ہوتی ہے تو کسی ایک کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ پورا ادارہ ہی خراب ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انصاف ہے نا جی اس کو پرفیکٹ کیا جائے کہ انصاف کا مطلب کیا ہے۔ ہوں ادھر تو میں حیران ہو گیا کہ جتنا بڑا مجرم اتنا بڑا اعلیٰ عہدہ، ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ پھر جتنا بڑا مجرم ہے اتنی بڑا عہدہ ہے، تو اس میں جو چھوٹے موٹے چورے بےچارے ان کو کیوں اتنی گرمیوں میں اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ حالت ان کی خراب ہے، ان بیچاروں کو آزاد کرو۔ وہ بیچارے چھوٹے موٹے مسئلوں کے اندر جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کو بھی تو انصاف دو نا۔ ہوں ہمارے جو عام پبلک ہے وہ جو انصاف کے لیے جاتی ہے، تو ان کے پوتوں کو بھی انصاف نہیں ملتا، ہوں اور بڑے سے بڑے مجرم کو اسی وقت رات کو کیا کہتے ہیں عدالتیں کھول کے، اور ان لوگوں کو کوئی اسپیشل انصاف ملتا ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو اچھا میں مرزا یہ صاحب، کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا بھی ملک ہے، جی آپ بتائیں، بولے۔ مرزا صاحب انصاف عدالتوں میں پاکستانیوں میں کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی جج اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں کہ وہ کوئی خدمت کریں، یا وہ لوگوں کے لیے انصاف کے لیے کوئی ایسے اقتدام لیں؟ کوئی آپ کو نظر آتی ہے یہ چیز پچھلے کوئی 40-50 سال سے؟ بھائی جان، ایمانداری کی بات بتائیں، ہم جو پردیش میں ہیں نا ان میں ہماری کئی اتنی جو ہے اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو کوئی کمانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ کیوں؟ ان کو اپنے ملک میں سب کچھ تھا نا، ہوں جن میں بھی شامل ہوں ہوں۔ ہم لوگ جو نکلے ہیں نا، وہ ہمارا ملک جو ہے بغیر سسٹم کے چل رہا تھا، ہوں تو ہم اس سسٹم کے خلاف تھے، تو وہاں سسٹم صحیح ہوتا تو انصاف بھی ہوتا نا۔ ہوں انصاف تو ہے ہی نہیں، صرف ہمارے ملک کے اندر جو قانون ہے صرف بڑے سے بڑے مجرم کی حمایت کے لیے ہے، اور اگر اپوزٹ میں دیکھا جائے تو یہاں غریب کے لیے ہے۔ ہوں تو یہ جو بڑے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ تو خود جب منصف ہو جائیں گے، جو قصوروار ہیں مجرم جی ان کو آپ منصب میں بیٹھا دیں گے تو وہ اپنے بارے میں کیا انصاف کرے گا؟ تو ہم لوگ جو ہے نا سسٹم سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اپنے ملک سے۔ جی مرزا صاحب، ایک ہمیں سوال ہے۔ اتنا ہمارا سوری۔ ملک یاد آتا ہے کہ جی اگر ہمارا ملک سسٹم میں ہوتا تو ہمیں جو ہمارے جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جی مرزا صاحب، ایک سوال ہے۔ جی آپ جاپان میں ہیں، جاپان کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ ہمارے پاکستان کے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی ایک نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے بتائیے جی کہ یہاں بھی
कितने लोग झूठ बोलते होंगे जापान में? आप ज़ाहिर लंबे अरसे से वहाँ रह रहे होंगे। भाई साहब, हमें शर्म आती है ना, ये जो इतना अच्छा सवाल आपने किया है कि हमें शर्म आती है कि हम तो मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते, बल्कि इनको देखकर हम सुधर गए हैं। हुँ, हम अपने मुल्क से जो अपना कल्चर और नेचर लेकर आए थे ना, जी। यहाँ की कौम, आप देखें, 2 एटॉमिक बम खा के बैठी है हाँ जी। और पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इनका पासपोर्ट का रैंक नंबर 1 है। हुँ, और पूरे वर्ल्ड में जो टूरिस्ट है, उन उनका लेवल भी, जो पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट के अंदर जापानीज नंबर 1 है। जी। वो किसी मुल्क जाकर बैठते नहीं है, ओवर स्टे नहीं होते, वापस आके अपने मुल्क की मदद करते हैं, क्या बात! अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लोग भी अपने इतने बुरे नहीं है, लेकिन वो हमारे लोग जो है ना, मजबूरन जो वहां रह रहे हैं, उनको उस सिस्टम के तहत चलना है, हुँ, वरना वो वहां रह नहीं सकेंगे। यहाँ हुँ, और हर आदमी हमारी तरह थोड़ी है कि इतना पावर रखे कि मुल्क से निकल जाए, हुँ, क्योंकि बाहर के मुल्कों के वीजे इतने इजी नहीं मिलते हैं। हुँ, जिसमें थोड़ा पावर था वो लेके निकल गया ना। तो हुँ, मेरी पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ 100% ऐसे लोग होंगे कि उनको अगर कहा जाए ना कि भाई आप बाहर जाना चाहते हैं, अमेरिका, यूरोप, तो सारे ही राजी हो जाएंगे, जी। क्योंकि वो लोग मजबूरन वहां एडजस्ट है, अच्छा, एक क्योंकि उनके पास सवाल है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। मिर्ज़ा साहब, एक सवाल है। आपने जिस तरह फरमाया कि सारे ही जाने के लिए तैयार हो जाएँगे, तो जब अमेरिका वहाँ आता तो उसको रहने नहीं देते फिर वहाँ पे, खुद अमेरिका जाना चाहते हैं। भाई, कोई भी देखे अमेरिका के खिलाफ नहीं है, कोई भी यूरोप के खिलाफ नहीं है, कोई भी रशिया के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं अमन। जी। ठीक है ना? तो मैं कुछ बातें सुनी इमरान खान साहब की, तो समझ आती है ना। हुँ, उसको मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों हटाया है। हुँ, इसलिए कि वो तो कह रहा है कि भाई, मैं कोई अमेरिका के खिलाफ थोड़ी हूँ। वो कह रहे हैं हमारा, हमें आजाद मुल्क चाहिए, बिल्कुल। हम अपनी मर्जी से जिए, हम क्यों किसी की डिक्टेशन ले। जी, बहुत ज़बरदस्त। मिर्ज़ा यही साहब, तो चीज है बहुत कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, जी, बहुत हम अपने शुक्रिया। फैसले खुद करें। हाँ, अमेरिका हो, यूरोप हो, वो कह रहा है भाई क्या मदद चाहिए, जी, हम हाजिर हैं, लेकिन अमन के लिए हाजिर हैं, ज़बरदस्त, लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। ज़बरदस्त, गलत काम के लिए हम हाजिर नहीं है। गलत ज़बरदस्त। काम के लिए तो अमेरिका थोड़ी, गलत काम के लिए रशिया भी कहेगा, तो वो हम तो उसका भी साथ हुँ, भी देंगे। इमरान खान तो कह रहा है। वो तो दूसरी बात ये कि उसकी प्लानिंग क्या थी, उसका तो बहुत पहले का प्रोग्राम बनता हुआ था, ये जंग शुरू होने से पहले। तो वो वहां मजबूरन उसकी टाइमिंग ऐसी हो गई जहाँ की, उसके बाद जंग शुरू हो गई, तो हुँ, उसको तो पनिशमेंट दे दी। जी, तो मोदी साहब तो चलते ही जंग में गए। हुँ, वहां ये हाइपोक्रेसी है कि आप उसको क्यों नहीं मना कर रहे, वो तो आपकी G20 में है हुँ, आगे। तो मोदी को जा रहा था तो उसको मना किया अमेरिका ने, उसने नहीं सुनी और वो चला गया। तो अमेरिका ने उसका क्या बिगाड़ लिया। हुँ, उसके बाद कहा चलो भाई इसके साथ बिजनेस नहीं करना। तो उस वो सारा बिजनेस जो है, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल और राइस है, गंदम है, वो इतने सस्ते लेवल पे उसने कहा भाई मैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए करूँ, मैं सोच रहा हूँ, हुँ, मेरे लिए जो बेहतर लगता है ना। तो जी, इमरान खान जब अपने मुल्क के लिए सोच रहा है, तो उसने क्या कसूर किया है बताओ ना। बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब, तो वक़्त बात ख़त्म हो इमरान रहा है। खान की नहीं है, यही बात आप कहेंगे, कोई दूसरा कहेगा, मैं भी ये बात कहूंगा, तो हर आदमी को समझ आएगी। अब इसका ये मतलब है, ले लेते हैं लोग कि भाई ये बीबी का निकल लग रहा है, यहाँ ये तरीके साहब का है, या ये नवाज शरीफ का है। अरे भाई ये बातें नहीं है। जो बात हक की और सच की। इंसाफ की नजर आएगी, वो आदमी, हर आदमी उस बात की, उस पॉलिसी की हिमायत करेगा। जी, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, टाइम काफ़ी हो गया, आपसे और भी प्रोग्राम करेंगे। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ आपने बताया। सिर्फ़ चंद लफ्ज़ों में बताएँ, हमारा चैनल देखते हैं आप कभी-कभी? भाई, मैं इतना हैरान हूं कि इतना बेहतरीन चैनल और इतना बेबाक, बेबाक से मुराद हक की बात करने का। जी, आपका चैनल जो है ना, किसी पार्टी का नहीं है, जी, आपका चैनल हक की बात करता है, बिल्कुल, और वो कोई भी हो। तो जी, मैं इसलिए खुद मैंने
बहुत प्रोग्राम आपके देखे, मैंने कहा मुझे भी कोई किसी तरीके से पता चले, हम बाहर रहते हैं जी तो मैं भी चाहता था कि मैं अपनी दिल की बात बताऊं कि भाई लोगों की क्या सिचुएशन है। या जापान के लोग भी जो है ना, बहुत सारे पीपी के, नवाज शरीफ के बहुत सारे थे, जी जी लेकिन बात जब गुलामी की और आजादी की, इज्जत नफ्स की आ गई, आप यकीन करो इधर के लोग इस पॉइंट पर, हमारे मुल्क का नाम है ना, जी हमारे मुल्क की आजादी चाहिए, हमें सिर्फ लफ्जों में आजादी मिली है, जबरदस्त प्रैक्टिकल कहाँ है? हम आज तक गुलामी है। जी बहुत शुक्रिया जब हम मिर्जा साहब आजाद होना चाह रहे हैं ना, प्रैक्टिकल आजाद होना चाह रहे हैं, तो वहां हमें रोका जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब अपना ख्याल रखिए फिर भी आपके साथ प्रोग्राम चलते रहेंगे जी बहुत शुक्रिया भाई थैंक यू साहब। थैंक अच्छा मुझे बातें तो मिर्जा साहब की ज़बरदस्त थी जो बात उन्होंने की कि जो लोग बाहर होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते वो पाकिस्तानी होते हैं और बड़ी ही प्यारी बात है और यही चीज़ हमें पाकिस्तान के अंदर भी सीखनी चाहिए हमें ये नहीं कि बाहर आके सब पाकिस्तानी बन जाए पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी बनना होगा सब्सक्राइब करें जुड़े रहें हमारे साथ मिलेंगे नए प्रोग्राम में अल्लाह हाफिज़